Hello students, I am Professor Neeta Fulchan Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, in today's lecture I am going to teach you class 5 English textbook series unit number 2 lesson A Lesson for All. This lessons all question answers with full explanation in Hindi. So ये जो आपका lesson है A Lesson for All, इसके question answers आज हम पढ़ेंगे. Let's learn. Question number 1 and see the following questions. Number 1, question number 1 में का 1 है what difficulties do the people in the play face morning? Okay, what difficulties do the people in the play face in the morning? So the answer is the difficulties that people in the play face in the morning are number 1, Mr. Desai doesn't get his newspaper. Number 2, Mr. Patel doesn't get his morning cup of tea. Number 3, Madhu injures herself on a broken glass bottle. Number 4, the newspaper boy trips over an old tire and sprains his foot. Number 5, the milkman's bicycle tires are punctured and he has to walk all the way with his heavy milk can. So this is the answer of the first question. And next, okay, one remaining. Number 6, the bus driver couldn't drive on the road due to the litter. And number 7, people couldn't walk on the street because of the garbage and litter lying all around. So this is the answer which is finished over here. First का answer यहाँ पर हो गया. Question number 1 में का 2, what more difficulties would they have to face if the roads are not clear? इसका अर्थ है कि अगर रास्ते पर जो गंदगी है अगर वो साफ नहीं की तो उनको क्या क्या और मुसीबतें झेलनी पड़ेगी. उसका आंसर है if the roads are not cleared, vehicles would not be able to ply on the road. Bicycle tires would get punctured. Children would get injured and it would not be safe for them. So ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया बच्चों. Number 3, what are the complaints of the animals? अभी animals की क्या क्या complaints हैं? Answer. The complaints of the animals are that the people dump all their litter and garbage in the forest. Number 2, the trees are dying and vanishing. Number 3, the birds have no place to roost and build their nest. Number 4, the animals get hurt and their young ones die. तो यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट इसमें एनिमल्स के जो भी प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं कि कचरे से उनको क्या क्या परेशानी को सामना करना पड़ता है. लाइक कि जो कचरा होता है कि वो जंगल में जाता है, उसके वजह से उनको परेशानी होती है. उसके वजह से क्या होता है कि जो पेड़ है वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं क्योंकि पेड़ की जो कटाई है वो बढ़ रही है. उसके बाद जो पंछी है वो अपने वो अपने जो नेस्ट है वो नहीं बना पा रहे. एनिमल्स जो है वो हर्ट हो रहे हैं, उनके जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं. वेस्ट इज डम्प इन द रिवर्स एंड लेक्स एंड द फिश डाई ड्यू टू दिस. जो पानी में हम कचरा डालते हैं ना तो उससे मछलियां और पानी के जो भी एनिमल्स है वो मर जाते हैं. एनिमल्स ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर एंड फॉल इल एंड डाई. और ये गंदा पानी पीने से जो एनिमल्स है वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो मर जाते हैं. सो दीज आर द कंप्लेंट्स ऑफ द एनिमल. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द कैरेक्टर्स इन द प्ले. नंबर 1, ह्यूमन कैरेक्टर्स जो दिए हैं इस प्ले में, दैट इज द ह्यूमन कैरेक्टर्स इन द प्ले आर मिस्टर देसाई, मिस्टर पटेल, मधु, निधि, मिस्टर जोशी, डॉक्टर सावंत, द मिल्कमैन, न्यूज़पेपर बॉय, the bus driver, the hawkers and the mayor. So these are the human characters in the play. Let's check next. Birds and animals. Which birds and animals are mentioned in this play? The animals and birds characters are deer, bear, birds, squirrel, rabbit, tortoise and peacock. Question number 3, activities. Question number 3.1, enact the play. इसका मतलब क्या है बच्चों कि डिवाइड योर सेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड इनैक्ट द प्ले. आपको क्या करना है, आपका ग्रुप जो है वो ग्रुप बनाना है, हर एक को एक एक कैरेक्टर लेना है और ये जो प्ले आपने अभी जो सीखा है लेसन फॉर ऑल, सो यही आपको वापस कैरेक्टर्स अलग अलग करके हर किसी को एक एक कैरेक्टर लेना है और यही नाटक आपको वापस से दोहराना है. ओके,
सो ये इसका मीनिंग है. नंबर 2, राइट द स्लोगन्स फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव इन योर एरिया. आंसर स्लोगन्स फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव. मैंने कुछ स्लोगन्स दिए हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक गो ग्रीन, गो क्लीन. नंबर 2, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया इज आवर ड्रीम इंडिया. नंबर 3 वाला जो स्लोगन है, दैट इज नीट एंड क्लीन इज अ परफेक्ट सीन. Number 4, don't be so mean and keep surroundings very clean. And number 5, be clean, be healthy. So students, these are some slogans. आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है उसमें का ये थर्ड वाला क्वेश्चन है. राइट अ शॉर्ट नोट और स्टोरी बेस्ड ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. प्रदूषण जो होता है उसके क्या बुरे जो परिणाम होते हैं वो हमें लिखने हैं. आंसर लिखा है यहाँ पर. वी डंप आवर गार्बेज इन द फॉरेस्ट, एज अ रिजल्ट द ट्रीज डाई, द एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव नो प्लेस टू रोस्ट और बिल्ड नेस्ट. Their young ones get hurt and die. The fish in the rivers and lakes because of the chemicals and poisons released into the water. Animals drink the polluted water and fall ill and die. Vehicles and factories give off poisonous and gases and fill the air. As a result, the amount of oxygen in the air get reduced. People in the large cities suffer from various diseases. So this is the answer of this question. Next है question number 4. इसको language study बोलते हैं. Number 1, find 2 examples of each of the following from the lesson. Statement जो होते हैं यानी कि जो simple sentences है, like it's 9 o'clock, जिसके बाद full stop आता है. It's 9 o'clock. Mr. Patel is so grumpy. उसके बाद और दो मैंने दिए हैं यहाँ पर examples extra के. Our young ones simply die. You have opened eyes. So these are some statements. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन यानी जिसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है बच्चों. ठीक है. सो फर्स्ट मैंने लिया है आपके टेक्स्ट बुक से. व्हाई हैजंट द न्यूज़पेपर बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम टुडे. सेकंड, वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड द गार्बेज कम फ्रॉम. उसी के बाद मैंने और दो एक्स्ट्रा के सवाल दिए आपको. वेयर कैन वी रूस्ट और बिल्ड नेस्ट एंड डोंट आवर यंग वंस गेट इंजर्ड टू. नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे हम कमांड. ओके, कमांड का मतलब होता है कि हम किसी को अगर कुछ आपने बोल रहे हो या फिर इसको हम बोलते हैं कि आज्ञा देना या फिर कोई बात बताना जिसको कोई फॉलो करना चाहता है. लाइक फर्स्ट, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत. दिस इज द कमांड. निधि को बोला गया है कि भाग कर आ जाओ और डॉक्टर मिसेस सावंत को बुलाओ. लाइक नंबर 2 है लेट मी सी द वाउंड. मुझे जख्म को देखने दो. ये कमांड है. लाइक उसके बाद और दो मैंने दिए एग्जाम्पल. लेट अस सेव आवर मदर और फ्रॉम फॉर द हार्म. एंड 2, लेट्स क्लियर दिस अप. नेक्स्ट वाला है एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मीन्स व्हाट, कि जिस सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क. उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस. ओके. सो नंबर 1, समबडी हेल्प प्लीज. नंबर 2, एंड द मिल्कमैन एट लास्ट. उसी के बाद और दो देखेंगे हम एग्जाम्पल्स. हाउ शॉकिंग, good idea. So these are some examples. Okay. So question number 5 अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क. आपको आपके ग्रुप के साथ मिलके ये करना है. नंबर 1 क्या करना है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, 4 या 5 जन का आपका ग्रुप बनाना है. ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड बाय टॉकिंग टू योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर्स. सो आपको क्या करना है, आपके टीचर्स है, पेरेंट्स है या फिर जो भी आपके नेबर्स हैं उनको आपको ये सवाल पूछने हैं जो नीचे दिए गए हैं और उनके जवाब आपको ढूंढने हैं. डिस्कस योर आंसर्स इन द ग्रुप. पहला सवाल क्या है, हाउ इज वेस्ट जनरेटेड. कचरा कैसे तैयार होता है. सो इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए हैं, आपको और सारे आंसर्स ढूंढ के निकालने हैं और नोटबुक में नोट डाउन करके फिर आपके ग्रुप में डिस्कस करने हैं. सो आंसर दिया है मैंने, लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा कुचा खाना होता है. ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं. ओल्ड पेपर्स, सो इनसे वेस्ट जनरेट होता है. लाइक दैट आपको और सारे सवाल ढूंढने हैं. यू कैन आस्क योर टीचर, पेरेंट्स एंड अदर्स. नंबर 2 जो क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करना है, हाउ इज इट रिमूव और जनरेटेड. कचरे को किस तरह से दूर किया जाता है या फिर हाउ इट इज रिमूव्ड और जनरेटेड. सो आंसर है गार्बेज कलेक्टर जो होते हैं वो कचरा लेके जाते हैं. डंपिंग ग्राउंड में कचरा जाता है. कॉमन गार्बेज बीन्स ऑन द रोड एटसेट्रा. सो कॉमन गार्बेज बीन जो रहते हैं रोड पर, सो उसमें भी हम कचरा डाल सकते हैं. इससे हम इस कचरे को हटा सकते हैं. नंबर 3, हाउ कैन वी हेल्प इन द टास्क ऑफ क्लियरिंग और रिमूविंग गार्बेज. हम कैसे मदद कर सकते हैं कचरा हटाने में. लाइक यूज बीन्स और बेलॉज.
के जो कायदे से जो बताया गया है, जो नियम है वो आप फॉलो करो और कचरे के डिब्बे में ही कचरा डालो। इस तरह से और सारे जवाब है वो आपको ढूंढने हैं और ग्रुप में डिस्कस करने हैं बच्चों। नंबर 2 आपको एक्टिविटी दी है, इन व्हाट वे कैन वी हेल्प टू रिड्यूस और मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। और कौन सा रास्ता है जिससे कि हम कचरे का जो ये बोलते हैं ना उसको कि वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कचरा है उसको अच्छी तरह से किस तरह से उसको हम कम कर सकते हैं। व्हाट आर दी वेरियस काइंड्स ऑफ आइडियाज। Discuss the issue in group 4 or 5 and note down the suggestion. Resolve to follow them yourself. Some have been given below for your reference. आपके लिए कुछ यहाँ पर दिए गए कुछ पॉइंट्स हैं, इसी तरह से आप ग्रुप में डिस्कस करना है और नोट डाउन करना है। यानी कि आप बोल सकते हैं डोंट वेस्ट फूड, यानी कि खाना आप वेस्ट मत करो, जो वेस्ट खाना जाता है उससे ही कचरा पैदा होता है। लाइक नंबर 2, टेक एज मच एज यू वांट बट फिनिश एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट। जितना आपको खाना परोसा गया है उतना आपको फिनिश करना है। नंबर 3, डोंट थ्रो अवे ब्रोकन और हाफ यूज थिंग्स, रिपेयर देम एंड यूज देम। जो आधी टूटी फूटी चीजें होती है उनको कचरे में ना डालो, उसको आप रिसाइकल करके यूज कर सकते हो। इट मीन्स व्हाट कि टूटे हुए कांच के डब्बे से या फिर प्लास्टिक की बोतल से आप अच्छे से कोई तो एक नया और डेकोरेशन का, या फिर घर में जो हम नई नई चीजें बनाते हैं, लाइक अपनी मदर से पूछो, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वीडियोस की जो भी ब्रोकन चीजें उनसे हम किस तरह से यूज चीजें बना सकते हैं। उसके बाद है अवॉइड थिंग्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, फॉर एग्जांपल थर्मोकोल कप्स, प्लास्टिक ग्लासेस। तो हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है, थर्मोकोल कप्स नहीं यूज करने हैं, तो आपके घर में जो भी स्टील के कप्स होते हैं, लाइक कांच के होते हैं, वही आपको यूज करने हैं। रीयूज यानी कि जो एक बार यूज की गई जो चीजें उसी को आपको वापस यूज करना है। और रिसाइकल करना है, कचरे को रिसाइकल, कचरा किस तरह से रिसाइकल होता है ये आप इंटरनेट से एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करनी है और इससे आपको क्या क्या नई नई आइडियाज आती है वो नोट डाउन करनी है। ओके सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा अ लेसन फॉर ऑल क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 1 का ये जो लेसन है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, सारे लेक्चर्स आप वो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट और इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग बच्चों और पेरेंट्स एंड चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।